بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں سید تنصیر زیدی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امریکی سازش کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے حالیہ بیان کو حکمران اتحاد کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس کو یو ٹرن کہہ رہا ہے، جبکہ تحریک انصاف کی قیادت اس کو غلط رخ دینے کا الزام عائد کر رہی ہے۔ اس پر بات ہوگی اسی بلیٹن میں۔ اور میں ہوں صدف دورانی، میں ہوں رامین سید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دیں گے اہم خبر۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کرانے کی ہم نے بہت کوشش کی، لیکن زمینی حقائق موجود ہیں۔ آرڈر وہی ہونا چاہیے جس پر عمل درآمد ہو سکے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تو مکمل انکار کر دیا ہے۔ سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے لیے کیوں نہ پنجاب سے سیکیورٹی اہلکار سندھ تعینات کر دیے جائیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے اپنے نمائندہ فہیم اختر سے۔ جی فہیم، اس کارروائی کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے حوالے سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی ہے، جس کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر نے کی۔ آج کے اس سماعت میں سندھ حکام پیش ہوئے، چیف سیکرٹری سندھ کے علاوہ آئی جی سندھ اور تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے اور وکلاء نے شرکت کی۔ اور آج کی سماعت میں سندھ حکومت کی جانب سے یہ درخواست کی گئی الیکشن کمیشن سے کہ بلدیاتی قانون میں ترمیم کے حوالے سے بھی معاملات ہیں اور سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار بھی دستیاب نہیں ہے، اس لیے 90 روز کے لیے جو سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کیا جائے۔ چیف سیکرٹری سمیت وزارت داخلہ اور جو آئی جی سندھ ہیں ان کی جانب سے بھی یہی موقف اختیار کیا گیا۔ تحریک انصاف کے وکیل نے سندھ حکومت کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کڑی تنقید کی۔ یہی موقف جماعت اسلامی کی جانب سے بھی اپنایا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تو معذرت کر لی ہے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ سندھ میں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو تعینات کیا جائے، لیکن وہی فیصلہ دیں گے جس پر عمل درآمد بھی کرایا جا سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ ہم نے انتخابات کرانے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتخابات کرانے ہیں۔ بہت شکریہ فہیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن آرٹیکل 186A پر انحصار کر رہا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کے مختلف ہائی کورٹس کے کیسز یکجا کرنے کے فیصلے کی مثال موجود ہے؟ مختلف ہائی کورٹس میں زیر التوا کیسز یکجا کرنے میں قانونی نقطہ ایک ہونا ضروری ہے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ یہ رپورٹ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیے کہ سپریم کورٹ نے 1999 میں مختلف ہائی کورٹس میں زیر التوا انکم ٹیکس کیسز یکجا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹس میں الیکشن کمیشن کے خلاف عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر نے کیسز کر رکھے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ پیمرا کیسز میں سپریم کورٹ قرار دے چکی کہ ہائی کورٹس کے کیسز چلتے رہیں، یکجا نہیں ہوں گے۔ متضاد فیصلے جب سپریم کورٹ آئے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ جسٹس عطر من اللہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی جج معاونین کیس میں تمام ہائی کورٹس کے کیسز یکجا کیے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کون سے آئینی اختیار کے تحت ہائی کورٹس میں زیر التوا کیسز یکجا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کی ہائی کورٹس کے حکم امتناع کے خلاف درخواستوں کو بھی اسی کیس کے ساتھ مقرر کیا جائے۔ کیس کی سماعت 15 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں اتحادی حکومت نے کئی چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ملک کو مالی بحران سے نکالا۔ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا ہے، عالمی برادری سے بھی تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان نے پوری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کیا اور کرتا رہے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں سیلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ Shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. As a result of our teamwork and extensive positive
engagement across the board. Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. We experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. कराची में आलमी दिफाई आइडियाज़ नुमाइश 2022 में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। DG रेंजर सिंध ने बख्तरबंद गाड़ियों का जायज़ा लिया। स्टॉल पर मौजूद स्टाफ ने DG रेंजर्स को ब्रीफिंग दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची में आलमी दिफाई आइडियाज़ नुमाइश 2022 में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ नुमाइश 2022 का आगाज़ हो गया। नुमाइश 15 नवंबर से 18 नवंबर तक जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। कराची से शिराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज नुमाइश 2022 का आगाज। आज शुरू होने वाली नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। पहले 2 रोज मंदुबीन, तिजारती वफूद और नेटवर्किंग सरगर्मियों के लिए मुनक्किद किए गए हैं। नुमाइश में तुर्की, चीन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और फारिस की कंपनियां शिरकत कर रही हैं। नुमाइश में 60% हिस्सा आलमी और 40% मुकामी असला बनाने वाली कंपनियों का है। 64 मुल्कों के 285 मंदुबीन भी नुमाइश का दौरा करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को जहमत से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया है। दौरान नुमाइश सर शाह सुलेमान रोड सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सिर्फ इजाजत नामे वाली गाड़ियों को एक्सपो जाने की इजाजत होगी। शाहराह फैसल, नर्सरी से आने वाला ट्रैफिक को स्टेडियम से आगे एक्सपो जाने की इजाजत नहीं है। एयरपोर्ट से आने वाले ट्रैफिक ड्रिग रोड से राशिद मेनास रोड और नीपा का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। नीपा से पीपल्स चौरंगी तक हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही रिपोर्टर फयाज यूनस के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज, कराची। मशरकी लंदन में फैज़ान इस्लाम मस्जिद के ज़ेर एहतमाम 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना कारी तारिक महमूद, मौलाना सनाउल्लाह सेठी, मौलाना एजाज अहमद नेरवी समेत लंदन भर से उलमा कराम ने खुसूसी शिरकत की। नात ख्वान हज़रात ने खूबसूरत अल्फाज में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर की पहली बरसी के मौके पर उनके लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम भी किया गया। सलीम साबरी की रिपोर्ट। फैज़ान इस्लाम मस्जिद वॉल्थम स्टो के ज़ेर एहतमाम बड़ी 11वीं शरीफ की पुरनूर महफिल का इनेकाद वॉल्थम स्टो में किया गया। सूबाई असम्बली के मशहूर कारी मोहम्मद अली ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तलावत कुरान मजीद से महफिल का आगाज़ किया। नात ख्वानों ने अपने खूबसूरत अल्फाज में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। इस मौका पर उलमाए कराम ने अपने खिताब में कहा कि पूरी दुनिया में पीर गौस पाक की बड़ी 11वीं शरीफ का इनेकाद इंतहाई मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ किया जा रहा है। पीर गौस पाक ने अपनी सारी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग पर बसर कर दी। आपके सच और रास्त गोई ने उस वक्त राहजनों को रहबर बना दिया। महफिल में हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी अफगानी के वालिद शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर की पहली बरसी के मौका पर उनकी दीनी खिदमत को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया और उनके इसाले सवाब के लिए खुसूसी कुरान ख़वानी की गई। नूरुल हुदा इंटरनेशनल के इंचार्ज अल्लामा एजाज अहमद नीरवी, हज़रत मौलाना कारी तारिक महमूद और हज़रत मौलाना सनाउल्लाह सेठी ने कहा, औलिया कराम की तालीमात से लोगों को आगाह करना होगा। पैगाम सूफिया और औलिया कराम ने दिया था, इस पैगाम से उम्मत मुस्लिमा को रोशनास करवाना होगा। पूरे यूके में और पूरी दुनिया में माशाल्लाह हर मस्जिद में ये मनाई जा रही है बड़ी 11वीं शरीफ। और सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला, आपका बड़ा पकीज़ा मिशन था कि लोगों को अल्लाह के करीब करना, मौला के करीब करना,
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रंगना, और यही चूँकि औलिया कराम का फैज़ान है, तो अल्लाह करीम हम सबको सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फैज़ान इस्लाम इंटरनेशनल लंदन में बड़ी 11वीं शरीफ का प्रोग्राम और इंतज़ाम किया गया है, और इसमें हज़ूर गौसुल वरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात के हवाले से कि किस मेहनत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और क्या दर्स दिया, और जो अमन का, प्यार का, मोहब्बत का और रूहानियत का दर्स दिया, उसको आम करने के लिए ये महफिलें सजाई गई हैं। सना खान ने अपनी सनाखानी पेश की, और इसके साथ भी हमारे अल्लामा साहब के वालिद गिरामी मरहूम मगफूर का ये सालाना खत्म पाक भी था, और मरहूम मगफूर के साल सवाब के लिए दुआ भी की गई, और जुमला उम्मत मुसलमा के लिए दुआ भी की। ये महीना उनके उर्स का महीना भी है, तो प्रोग्राम इनेकाद पजीर है ताकि सूफिया किराम और बुजुर्गान दीन की तालीमात से उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया जाए, और वो पैगाम जो सूफिया ने, जो बुजुर्गान दीन ने एक्चुअल इस्लाम का पैगाम दुनिया को दिया था, उस पैगाम से उम्मत मुस्लिमा को रोशनास कराया जाए। इस सिलसिला में आज फैज़ान इस्लाम में ये प्रोग्राम हो रहा है, और यहाँ काफ़ी अवाम इकट्ठे माशाअल्लाह। पीर गौस पाक की सालाना 11वीं शरीफ इंतहाई मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ उस वक्त बरतानिया के चारों कोनों में मनाई जा रही है। महफिल के आखिर में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, मशरकी लंदन। बिलखुसूस हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी विसाल के ये बाबरकत महीना, इलाहुल आलमीन उनके दर्जात बुलंद फरमा। दारुल मुनव्वर घमघोल शरीफ, ड्रम स्ट्रीट, रॉसडेल सेंटर में हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सालाना बड़ी 11वीं शरीफ की खूबसूरत और बाबरकत महफिल सजाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। महफिल में साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सैयद हामिद सईद काज़मी ने खुसूसी शिरकत की। बाबरकत महफिल का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। तेरी वलियां ते सुल्तानी या गौस पिया जिलानी। पीरान पीर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना बड़ी 11वीं शरीफ की खूबसूरत और बाबरकत महफिल रॉसडेल में सजाई गई। महफिल में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। बाबरकत महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर शुरकाए महफिल ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर गौसे आज़म की शान में खूबसूरत कलाम पेश करके हाजरीन पर वजद तारी कर दिया। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहां, वो कहाँ मैं कहाँ। 11वीं शरीफ की बाबरकत महफिल से खिताब करते हुए हज़रत मौलाना हाफिज अताल मुस्तफ़ा नक्शबंदी और साबिक़ वज़ीर बराए मजहबी अमूर सैयद हामिद सईद काज़मी ने हज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हयात तैयबा पर मुफस्सल रोशनी डाली। उनका कहना था कि अगर हम गौस पाक से पक्की और सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमें उनकी तालीमात पर हर हाल में अमल करना होगा। अबू जहल खड़ा, जीता जागता इंसान खड़ा, उसकी मुट्ठी में पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन अबू जहल को कलमा नसीब नहीं होता। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए दारुल मुनव्वर गमकोल शरीफ सेंटर के इमाम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रऊफ नक्शबंदी और दीगर उलमाए कराम का कहना था कि हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी हमारे लिए मशरे राह है, और उनकी याद में सजाई गई महफिल से हमें कल्बी सुकून मिलता है और इन हस्तियों की रूहानी तालीमात से भी आगाही मिलती है। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम दारुल मुनव्वर गमकोल शरीफ सेंटर में अजीम शान बड़ी 11वीं शरीफ सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बहुत सारे उलमा तशरीफ़ लाए। खुसूसी तौर पर हज़रत सैयद पीर हामिद सईद काज़मी साहब अजीम शान उनका खिताब हुआ, और इसके अलावा बहुत सारे उलमा और खुसूसी तौर पर बर्मिंघम से तशरीफ़ लाने वाले जिनके ये सदारत में प्रोग्राम हुआ, साहबज़ादा मोहम्मद जुनैद अख्तर साहब नक्शबंदी, वो तशरीफ़ लाए और दिगर उलमाए कराम कसीर तादाद के साथ तशरीफ़ लाए, और अल्लाह को कबूल फरमाए। Life of Sayyid Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayhi, those that attended benefited from the gathering by taking away practical lessons that they can apply on a daily basis into their lives. हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत में वो महबूब शख्सियत हैं कि जिनका साया तमाम औलियाए ज़माना पर जब तक न हो उतने तक वो इस
मकाम पर विलायत की मंजिल पर फायज ही नहीं हो सकते। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि जो शरीयत और तरीक़त के जामे थे। साबिक वज़ीर बराए मजहबी अमूर सैयद हामिद काज़मी का पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है और हमें सोच समझ कर ऐसे सियासतदानों को आगे लाना होगा जो मुल्क व कौम को मुतहद करके तरक्की की मनाजिल तय कर सकें। हमें अपनी तौर पर पहले ये तय कर लेना चाहिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें से कौन ऐसे हैं जिनसे हम कोई उम्मीद की किरण जोड़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये जो हैं ये अगर आएंगे तो मुल्क व कौम के लिए कोई बेहतरी की सूरत होगी। पहले ये होता था कि अगर सियासतदानों से मायूसी होती थी तो लोग मार्शल्लाह से अपनी उम्मीदों के रिश्ते जोड़ लेते थे। फौज आएगी ना, मार्शल्लाह लगेगा, सब गलत लोगों की और सब मुजरिमों की ऐसी की तैसी हो जाएगी और मुल्क सीधे सच्चे रास्ते पर चल पड़ेगा। लेकिन अब वो चीज़ें भी धुंधलाती जा रही हैं। तो ऐसे बाबरकत महफिल में शिरकत करने वालों में मौलाना उमर हयात कादरी, सूफी मोहम्मद जमान, मौलाना मोहम्मद सदीक कौसर, मोहम्मद इरफान मदनी, मौलाना इरफान चिश्ती और कारोबारी शख्सियत जाहिद इकबाल के अलावा बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। कदी सानू भी दीद करा मेरा बगदाद महफिल के आखिर में सैयद हामिद सईद काज़मी ने तमाम उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान की भलाई, तरक्की और खुशहाली के लिए और बीमारों की शिफा के लिए दुआ कराई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, राशडियल, ग्रेटर मैनचेस्टर। मेरे मौला ये सब तेरे बंदे तेरी बारगाह में सवाली हैं, इनमें कुछ बीमार हैं उनको सेहत दे दे, कुछ दोस्तों के अहले खाना अली हैं, मौला बीमारियों को इनके घरों से दूर दफा कर दे, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ग्लोबल कम्युनिटी एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम बर्मिंघम के पाकिस्तानी काउंसलेट में ख़वातीन की सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुईं और सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में आगाही हासिल की, जबकि मारूफ मनक़बत ख़्वान लड़कियों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके शुरका को खूब महसूस किया। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानवी पाकिस्तानी ख़वातीन को अपने कल्चर और रवायात के साथ जोड़े रखने के लिए पाकिस्तानी कौंसलेट हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम करता रहता है ताकि ओवरसीज़ मर्दों के साथ ख़वातीन भी अपने मुल्क की रिवायात को नौजवान नस्लों तक मुंतकिल करने का मौजब बन सकें। इसी मुनासबत से बर्मिंघम कौंसलेट के कम्यूनिटी हॉल में ग्लोबल कम्यूनिटी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन की सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस में नबी पाक की हयात तैयबा के बारे में आगाही फराहम की गई। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी एक खूबसूरत नमूना है। कुरान करीम में आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान पैदा किए मगर अपनी इबादत के लिए। ग्लोबल कम्युनिटी एसोसिएशन की चेयरपर्सन रानी आरिफ, काउंसलर बख्तावर मीर, साबिक कायम मकाम कौंसल जनरल सादिया मलिक, अफवा की चेयरपर्सन रिफत मुगल और दीगर ख़वातीन ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। इस मौका पर ब्रिटिश पाकिस्तानी नशीद खां बच्चियों ने मुनक़बत सुनाकर शुरका ख़वातीन को खूब महसूस किया। इस दौरान कौंसलेट बख्तावर मीर, रानी आरिफ, रिफत मुगल और दीगर ख़वातीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए हम अपनी बच्चियों को दीन के साथ साथ अपने वतन की रिवायात से भी मुंसलिक रख सकते हैं, जिसके लिए बर्मिंघम कौंसलेट के शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ख़ास तौर पे मैं इस बात पे खुश हूँ कि बहुत माशाल्लाह हमारी यंग जनरेशन ने बड़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी नातें और बहुत अच्छा कलाम
अल्लाह ताला हम सबको इस रास्ते पे लगाए रखे और इन बच्चियों को और इन बच्चों को हमारे लिए परवरदिगार जो है कोशिश कर, हमारी भी यही कोशिश है कि हम इनको अच्छे और अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए। हम उम्मती होने का हक अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना अदा ज़रूर कर सकते हैं कि हम इकट्ठी ख़वातीन मिलकर बच्चियों को, छोटी मासूम जो बच्चियाँ आज वो भी आई हुई हैं, उन पर भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लैंड में रहते हुए हमें इन चीज़ों की, इन महफिज की हमें अरेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें साल में 1-2 दफ़ा इस तरह की हमने महफिल करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों पर अफेक्ट अच्छा पड़े। की ख़वातीन है माशाल्लाह, उन्होंने मिलके बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है और इसमें बड़ी तादाद में यंग बच्चियाँ भी आई हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह की महफिलों से हमारे बच्चे भी, बच्चियाँ जो है वो हिस्सा लेती हैं और आके देखती हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की महफिलें और होती रहें और इसमें ख़वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। यंग हमारी कम्युनिटी के बच्चे बच्चियाँ इस में पार्टिसिपेट करें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को अपने रिलीजन के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ये हमारी ज़िंदगी पे, हमारे बच्चों की लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके ऊपर पॉजिटिव वाइब्स जाती है कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके बारे में हम बता रहे हैं, उनकी लाइफ क्या थी, उनको बायोग्राफी क्या थी। हम नात शरीफ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे, जैसे मैंने अपनी बेटी साथ लाई है, उसको वो समझ में आ रहा है कि वरना तो यहाँ पे कोई हमारा अपना कल्चर है ही नहीं, मगर जब हम ये गैदरिंग करते हैं इस वजह से हमारे बच्चों को भी पता चल जाता है कि नहीं, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है, कि उनकी लाइफ भी उनके लाइफ पढ़ सुन के तो वो आगे जा सकते हैं। तमाम हमारे रिलीजन्स जो हमारे वाक़े होते हैं हम उनको पूरा भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो सीरतुल नबी के हवाले से हो, मिलाद शरीफ हो, अपना ईद के प्रोग्राम हो, रमज़ान के प्रोग्राम हो, किसी किस्म के, तो हम उन्हें भरपूर तरीके से इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़वातीन इकट्ठी हैं, वो नाते भी पढ़ रही हैं, सीरतुल नबी के मुताबिक जो है ना वो अपने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात भी कर रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम लोग अपना नॉलेज, अपना जो है अपने इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी, दूसरे लोगों तक अपना पहुँचाते हैं। शुरका का कहना है कि अपने नौजवानों को मुस्बत एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखने की गर्ज से रूहानी महाफिल का होना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड म्यूचुअल संडे स्कूल क्रिकेट लीग की 125वीं सालाना अवार्ड तकरीब ब्रेडफोर्ड में मुनक़िद हुई, जिसमें बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाली टीम्स और खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। तारीख़ी क्रिकेट लीग की तकरीब तकसीम अवार्ड में MP नाज शाह और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट। ब्रेडफोर्ड में 125 साल म्यूचुअल संडे स्कूल क्रिकेट लीग की तकरीब तकसीम इनामात। क्रिकेट लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों और खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड वसूल किए। इस मौके पर खिताब करते हुए MP नाज शाह, करीब के मुंतज़मीन और मेहमानों ने लीग की शानदार तारीख पर रोशनी डाली और क्रिकेट के मैदान सजाने पर खराज तहसीन पेश किया। इस साल लीग में शामिल टीमों के कप्तान, शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी और दीगर शख्सियात ने अवार्ड वसूल करने वाले खिलाड़ियों को तालियां बजाकर दाद दी। तीनों डिवीजन्स की लीग चैंपियंस और T20 रिसोर्स कप की फातेह टीमों को ट्रॉफियां दी गईं। मुख्तलिफ शोबों में इनफरादी तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर अवार्ड्स भी दिए गए। MP नाज शाह और दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर ब्रेडफोर्ड म्यूचुअल संडे स्कूल क्रिकेट लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अहदेदारों और दीगर शुरका का कहना था कि ब्रेडफोर्ड की सबसे पुरानी लीग है जो 125 साल तारीख रखती है, जिसका मकसद ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को प्रमोट करना है। जो T20 लेके आए हैं, मैं कहता हूँ दिस इज अ फंटास्टिक जॉब फॉर द डॉक्टर रिजवान एंड इब्रार और जुनैद भाई, और इन लोगों ने इस वजह से यंगस्टर्स में काफ़ी क्रिकेट की इन्वॉल्वमेंट हुई है और यंगस्टर जो है ना रेदर देन स्ट्रीट वर्क के साथ अपना वीकेंड जो है ना एंजॉय करते हैं क्रिकेट के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और ये इंग्लैंड के लिए स्पेशल फॉर नेशनल कम्युनिटी, हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए एक बड़ी एफर्ट है। So if it wasn't for our community, our people being involved in these organizations and this game, then this league would not have existed. And that, I think, is a reality, that it's our young people and our people from our community who are keeping this flame alive within Bradford and West Yorkshire. And I think that is a really important thing
that we should celebrate. یہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کرکٹ کو لے کر آنا اور وہاں سے اچھے پلیئر جو ہیں وہ آگے تاکہ وہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں بھی جا کر پہنچے. جس طرح ہمارے بہت سارے عادل رشید اور معین علی جس طرح لوگ آگے گئے اسی طرح یہ لوگ بھی آگے آئیں گے. ہماری یہی کوشش ہے اور الحمدللہ آج بہت زبردست ڈنر ہوا, لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے, ہمارے مہمان بڑے اچھے تھے اور جو انڈیویجول جن لوگوں نے, اور خاص کر کے میں نام لوں گا گرلنگٹن کلب نے جس نے ہر فیلڈ میں چیمپئن شپ بھی جیتی ہے, لیگ بھی جیتی ہے اور ریزو کپ بھی جیتا ہے. آج میں بہت خوش ہوں کہ ہماری دونوں ٹیمیں اے اور بی دونوں ٹیموں نے چیمپئن شپ بنی ہے اور اسپیشلی بی ٹیم کا میں کپتان تھا, میں بہت ہیپی ہوں. تقریب کے آخر میں شرکا نے ایوارڈز اور شیلڈز کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا اور آئندہ سیزن میں بھی بھرپور کرکٹ کھیلنے کا عزم ظاہر کیا. وقار بابر مغل 92 نیوز بریڈ فورڈ. یورپی ہیڈ کوارٹرز برسلز میں کشمیر کونسل ای یو کے زیر اہتمام کشمیری ای یو ویک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. یہ تقریبات کشمیر پر ایک تصویری نمائش, معلوماتی کانفرنس, ایک پریس کانفرنس اور مسئلہ کشمیر پر اہم یورپی نمائندوں اور شخصیات سے متعدد ملاقاتوں پر مشتمل ہے. ان تقریبات کے آغاز پر یورپی پریس کلب برسلز میں کشمیر پر تصویری نمائش سجائی گئی. کشمیر کی ثقافت اور کشمیریوں پر مظالم کے بارے میں یہ تصاویر یورپی پریس کلب میں آئندہ 2 ہفتے کے دوران عام تقریبات کے دوران لوگوں کی توجہ کا مرکز رہیں گی. کشمیر ای یو ویک کے باقی پروگرامز میں یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر پر بین الاقوامی کانفرنس, یورپی پریس کلب میں پریس کانفرنس اور یورپی پارلیمنٹ کے اراکین اور انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقاتیں شامل ہیں. کشمیر ای یو ویک کے آغاز پر چیئرمین کشمیر کونسل ای یو علی رضا سید نے کہا کہ کشمیر کونسل ای یو کی جانب سے کئی سالوں سے سالانہ کشمیر ای یو ویک منعقد کیا جا رہا ہے اور ایسے پروگرامز کا مقصد مسئلہ کشمیر کو یورپ میں زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے. سعودی عرب میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن اور پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ سعودی عرب سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی ہے. دارالحکومت ریاض میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے صدر احتشام جاوید کوہلی اور جنرل سیکرٹری اعجاز رحیم کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں پیپلز پارٹی سعودی عرب کے صدر تصور چودھری سمیت پیپلز پارٹی ریاض ریجن کے عہدیدار شریک تھے. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ سعودی عرب سے دونوں ممالک کے درمیان نئی ہم آہنگی اور تعلقات نے جنم لیا ہے جس سے پاک سعودی تجارتی اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. اجلاس سے تصور چودھری سمیت احسن عباسی, احتشام جاوید کوہلی, اعجاز رحیم اور دیگر نے اظہار خیال بھی کیا ہے. سعودی عرب میں مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے ایگزیکٹو کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں شریک لیگ کے اراکین کا کہنا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں سیاسی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. دارالحکومت ریاض میں کوآرڈینیٹر عدنان اقبال بٹ کی زیر صدارت منعقد ہونے والے اجلاس میں لیگی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانی مسلم لیگ نون کی اوورسیز پاکستانیوں کو دی جانے والی سہولیات کو بخوبی جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک و قوم تمام چیلنجز سے باہر نکل پائے گی. کوآرڈینیٹر عدنان اقبال بٹ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں مل کر پارٹی کو مضبوط بنانا ہے اور ایک قیادت کے اعتماد پر پورا اترنا ہے. اجلاس سے مخدوم امین تاجر, راشد اوان, محمد اصغر چشتی سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا ہے.